متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم کی عمارت سے ایک اور اینٹ اکھڑ گئی۔ ڈاکٹر صغیر بھی کمال کے ساتھ آ ملے، بولے ہم سمجھتے رہے راؤ سے تعلق کی باتیں جھوٹی ہیں، قوم نے تمہیں بنایا، قوم کو کیا ملا؟ نازیبہ تقاریر اور مارفین کے انجیکشن۔ جواب میں قوم کو کیا ملا ہے؟ مارفین کے انجیکشن، نشے میں دھت تقاریریں۔ ہم تو خدا کو بھول بیٹھے، خدا کو اتنی سروس دیتے، خدمت دیتے تو پتہ نہیں کس صف میں آج شامل ہو جاتے۔ ڈاکٹر صغیر کی ہنگامہ خیز نیوز کانفرنس، کہتے ہیں اربوں کس لیے لیتے ہو؟ تحریک کا کیا مقصد ہے؟ آپ چاہتے ہیں لاشیں گرتی رہیں؟ کوئی باضمیر شخص ایم کیو ایم قائد کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ بچوں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ۔ مصطفیٰ کمال پھر برسے، کہتے ہیں بھارتی ایجنٹ صوبہ بنانے کی بات کرے گا تو لوگ ڈر جائیں گے۔ راؤ سے تعلقات کے ثبوت مانگنے والے پہلے ان ثبوتوں پر کام کریں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی کسی لیڈرشپ نے رابطہ نہیں کیا۔ نیوز کانفرنس 0-0 ہے، متحدہ بھی مورچہ زن۔ باسط جلیل بولے نئی جماعت حقیقی پارٹ 2 ثابت ہوگی۔ ضمیر بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ مصطفیٰ عزیز آبادی کا شاعرانہ رد عمل۔ موت پھر خیبر پختونخوا کے تعاقب میں لگی رہی۔ شب قدر کچہری پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد شہید۔ بمبار کو روکنے والا اہلکار اپنی جان دے کر سینکڑوں زندگیاں بچا گیا۔ تعلیم نہیں احتجاج، پنجاب میں پھر وہی تماشا۔ کل پرائیویٹ سکول کھلیں گے یا نہیں؟ ایک گروپ راضی، دوسرا ضد پر قائم۔ والدین کنفیوز، رانا مشہود بولے قانون بدلے گا، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ 3 سے 4 ہزار اشتہاری آزاد ہوں گے تو امن و امان کی صورتحال کیا ہوگی؟ کراچی بدامنی کیس میں آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری کی سرزنش۔ پچھلے سال 159 افراد کی کلنگ ہوئی، کون سا مجرم پکڑا گیا؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ ناقص تفتیش کے باعث گزشتہ سال 1100 ملزم رہا ہوئے اور رینجرز رپورٹ نے کراچی پولیس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ سپریم کورٹ سے اختیارات میں 1 سال توسیع، اپنے تھانے بنانے اور مقدمات کی پیروی کے اختیارات مانگ لیے۔ بے نظیر قتل کیس میں 8 سال بعد بڑے انکشافات۔ سازش مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں تیار ہوئی۔ بلیک بیری فون 3 سال بعد زرداری ہاؤس کے ترجمان عبدالرزاق میرانی سے وصول کیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے کے بیان سے ہل چل۔ سعودی عرب کی خصوصی دعوت، وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف 9 مارچ سے ریاض کا دورہ کریں گے۔ فوجی مشقوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ پنجاب میں احتساب ہونا چاہیے، وزیر اعظم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ حسین نواز کی پروگرام کل تک میں گفتگو، شریف فیملی کا بینک ڈیفالٹ ثابت کریں، عمران خان کو چیلنج بھی کر دیا۔ اپنے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے، ایم کیو ایم کی بنیادوں سے ایک اور اینٹ اکھڑ گئی۔ ڈاکٹر صغیر ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر صغیر نے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر صغیر کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنے ضمیر کو مزید نہیں سلا سکتے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں ڈاکٹر صغیر ایم کیو ایم چھوڑ کر مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر صغیر نے سندھ اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں،
उन्होंने ये भी कहा कि अब अपने ज़मीर को मजीद नहीं सुला सकता। ये कहना था डॉक्टर सगीर का, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया सिंध असेंबली की रुकनियत से भी। और उन्होंने ये भी कहा कि इतने लोग साथ आएंगे कि गालियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कम पड़ जाएगी। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम पड़ जाएगी, गालियां कम पड़ जाएंगी। माँ बहनों के सामने ऐसी बातें सुनने को मिली जो कोई बाज़मीर शख्स नहीं कर सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर सगीर की जानिब से। जमीर लोग यहाँ आएंगे। एमक्यूएम का एक और मंझा खिलाड़ी बागी बन गया। डॉक्टर सगीर अहमद मुत्तहदा छोड़कर मुस्तफा कमाल के काफिले में शामिल हो गए। साबिक वजीर सेहत ने मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी और सिंध असेंबली की सीट छोड़ने का चौंका देने वाला ऐलान किया। मैं सर्विस नहीं दे पा रहा था आपको, मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात हुई, जमीर क्यों नहीं जाग रहा। डॉक्टर सगीर बोले, ऐसा किरदार अदा करना चाहता हूं जिससे मुल्क की तरक्की हो। उन्होंने कराची के साबिक नाजिम के साथ हाथ मिलाने की वजह भी बता डाली। जिस किस्म की अफसोसनाक सूरत हाल मैंने देखी है, मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरे जमीर ने कभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं जिस बात से कन्विंस नहीं हूँ मैं मीडिया पे जाकर उसको सेव करूँ। मेरे जमीर ने कभी इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं जिस बात के लिए अपने इनर मेरी सेटिस्फेक्शन ना हो, मैं उसको डिफेंड करने खड़ा हो जाऊं। इल्जामात और इंकिशाफात से भरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सगीर ने एमक्यूएम की क़यादत पर ताक ताक कर निशाने लगाए। क्या स्कॉटलैंड यार्ड, क्या इस मुल्क की एजेंसी सबको पता चल गया? सबके पास सबूत आ गए? क्या सबूत की गर्दान है? आज सबके पास सबूत है। साबिक सूबाई वजीर बोले कि हड़ताल की सियासत ने मईशत तबाह कर दी। लोगों के जनाजे उठा के सीएम हाउस के आगे बैठ जाओ यार। उनकी फैमिलियां मुझसे कहती रही कि भाई खुदा के वास्ते डॉक्टर सगीर साहब हमें ले जाने दें, हमारी माँ और बीवी को इनकी लाशें देखने दें। डॉक्टर सगीर के पास कोई जवाब ही नहीं कोई अभी यहाँ पे बात होगी, अचानक खत्म सब कुछ यार। कराची में सियासी जलजले के आज आने वाले आफ्टर शॉक्स ने एमक्यूएम की टेंशन बढ़ा दी है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुत्तहदा की मजीद विकटें गिरने वाली हैं। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एमक्यूएम को खैराबाद कहने वाले डॉक्टर सगीर ने एमक्यूएम के कायद को खरी खरी सुना डाली। बोले कि कौम ने तुम्हें बनाया, कौम को क्या मिला? नाजेबा तकारीर और मॉर्फिन के इंजेक्शन। साबिक सूबाई वजीर ने यह भी कहा कि नशे में धुत तकारीर में खवातीन से बेहुदा बातें की जाती हैं। फोन आया तो लर्जा तारी है। एमक्यूएम छोड़ने वाले डॉक्टर सगीर ने मुत्तहिदा क़यादत की ईंट से ईंट बजा कर रख दी। साबिक वजीर सेहत ने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा के कायद को ही निशाना बनाए रखा। जवाब में कौम को क्या मिला है? मॉर्फिन के इंजेक्शन, नशे में धुत तकारीरें, खवातीन और मर्दों की वो बातें जो दुनिया में सबको पता है, हजरत आदम से हजरत हव्वा से सबको पता है। क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो दुनिया को नहीं पता? कौन बाज़मीर शख्स अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये बातें कर सकता है? मैं किसी को तनकीद का आज निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन कहता हूं कि आंखें खोलो। डॉक्टर सगीर ने यहीं पर बस न की बल्कि एमक्यूएम कायद पर एक और इल्जाम लगा दिया। जब जब आप पे बुरा वक्त आए, आप महाजरों की आड़ लें, आप उनके पीछे जाएं और पीछे जाकर आप ये कहें कि जी महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है। आप बिठाए लोगों को, दे तकरीर, किसी की माँ बहन है, किसी कोई, ये तो ख्याल ही कोई नहीं है ना, कोई किसी की माँ बहन बेटी का रिश्ता कोई होता है, निभाया हो तो पता हो। साबिक वजीर सेहत ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम की सियासत पर भी दिल की भड़ास निकाली। इन कारकुनों को खुदा के वास्ते टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल ना करो। इन कारकुनान को खुदा के वास्ते पाकिस्तानी बनने दो। इन कारकुनान को खुदा के वास्ते काम धंधा करने दो। इन कारकुनान को खुदा के वास्ते एक पॉजिटिव इंसान बनाओ। डॉक्टर सगीर ने इल्जाम लगाया कि क़यादत अरबों रुपए लेती है, मगर शहीद कारकुनों के वर्सा को बस 2-3 हजार रुपए ही दिए जाते हैं। डॉक्टर सगीर भी एमक्यूएम के उन रहनुमाओं में से हैं जो पिछले कुछ अरसे से गायब थे। वकास बाकिर, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
एमक्यूएम कायद को निशाना बनाने के बाद डॉक्टर सगीर अहमद ने दावे भी किए। कहने लगे इतने लोग नई पार्टी का साथ देंगे कि जगह कम पड़ जाएगी। डॉक्टर सगीर बच्चों की हलाकत का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। तफसीलात बताएंगे नासिर भट्ट। मुश्किल में घिरी एमक्यूएम की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। डॉक्टर सगीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमक्यूएम पर इल्जामात की बौछार करते हुए एक बड़ा दावा कर डाला। गालियां कम पड़ जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कम पड़ जाएंगी। यहाँ इतने लोग आएंगे, यहाँ इतने लोग शरीक होंगे, यहाँ इतने लोग शमूलियत करेंगे। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, मेरा किसी से इस मौजू पे आज तक कभी बात नहीं हुई। माहौल ही ऐसा नहीं है कि किसी से आदमी अपने दिल की बात कर सके। साबिक वजीर बोले कि मुत्तहिदा वाले मुल्क दुश्मनी और हड़तालों की सियासत करते हैं। उन्होंने एमक्यूएम पर एक और फिक्रा कसा। इन कारकुनान को खुदा के वास्ते काम धंधा करने दो, इन कारकुनान को खुदा के वास्ते एक पॉजिटिव इंसान बनाओ, इनको इनके काम धंधे पे जाने दो, इनको बैरियर खोलने वाला, इनको झंडा लगाने वाला, इनको रंगो रोगन करने वाला ना बनाओ, इनको पढ़ने दो। डॉक्टर सगीर अहमद ने सख्त लहजे में एमक्यूएम पर शदीद तनकीद की। इस दौरान बच्चों की हलाकत के बारे में बताते हुए आपदीदा भी हो गए। लोगों के साथ बदफेलियां की गई, बच्चों के साथ जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के उनके साथ जिस तरह की, मैं खुदा की कसम मैं आज तक वो वीडियो नहीं देख पाया, खुदा की कसम, कि जिसमें एक आम बच्चा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो गोटा जरी का काम कर रहा है, लेथ मशीन पे काम कर रहा है, सिर्फ वो जा रहा है, उसको उतारा जा रहा है, शनाख्ती कार्ड देखा जा। और 3 दिन बाद हम वजारत में बैठे हुए। डॉक्टर सगीर अहमद ने वादे किया कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। कोई भी बाज़मीर शख्स कायद एमक्यूएम की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। डॉक्टर सगीर के गरजने के बाद मुस्तफा कमाल भी बरसे। कहते हैं भारतीय एजेंट सूबा बनाने की बात करेगा तो लोग डर जाएंगे। रॉ से ताल्लुकात के सबूत मांगने वाले पहले उन सबूतों पर काम करें जो उनके पास मौजूद हैं। डॉक्टर सगीर का पार्टी में आना चौका या छक्का नहीं बल्कि सेंचुरी है। उन्होंने और मजीद क्या बातें की, बताएंगे नईम खानजादा। एमक्यूएम की दीवारों पर जरब लगाने वाले मुस्तफा कमाल आज फिर खूब बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साबिक कायद पर चढ़ दौड़े। एक इंडियन कैरेक्टर्ड आदमी, इंडियन रॉ का आदमी, एस्टेब्लिश नोन फैक्ट, वो अगर किसी सूबे बनाने की बात करेगा कहीं पे, तो भाई वो तो ऑलरेडी जो है वो आपको तमाम एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमतों को, अवाम को पता है कि भाई ये तो फला बराबर पड़ोस का एजेंडा है। तो आप डर जाते हैं सारा पाकिस्तान के, नहीं भाई ये तो फिर मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने वजीर दाखिला चौधरी निसार की किसी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। मत मानो हमारी बात, कोई नहीं। जिसको हमारी बात माननी है वो सुबह से रात तक आ रहा है यहाँ पे, सुबह से अगली सुबह तक आ रहा है यहाँ पे। कराची के साबिक नाजिम ने डॉक्टर सगीर की शमूलियत को बड़ी कामयाबी करार दिया। सेंचुरी, पूरी सेंचुरी है, सेंचुरी। डॉक्टर सगीर की शमूलियत के बाद मुस्तफा कमाल बड़े पुरएतमाद नजर आए। उनका मजीद कहना था कि सब वर्कर्स हैं, हर आने वाले के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। अब आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वासे जलील, नदीम नुसरत और मुस्तफा अजीज आबादी ने तो अपनी ट्वीट्स में मुखालफिन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि मंडे का मंजन है, ऐसा ड्रामा पहले भी देख चुके हैं। मुस्तफा कमाल और उनके साथियों ने तो टीवी स्क्रीन पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके जवाब में एमक्यूएम के हामियों ने ट्विटर का महाज संभाल लिया। जमीर बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। इस शेर को ट्वीट किया एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा अजीज आबादी ने। नदीम नुसरत ने अपनी ट्वीट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा करार दिया। लिखा, इसका मकसद अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर एमक्यूएम को इल्जाम देना है। जबकि वासे जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर ट्वीट किया कि कराची में मंडे का मंजन वाला ड्रामा शुरू हो गया है। हम यही ड्रामा और स्क्रिप्ट पहले भी देख चुके हैं। उधर एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्देअमल में कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 0 + 0 = 0 के मुतरादिफ है और इसके जवाब में एमक्यूएम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد شاہی سید کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صغیر کا MQM چھوڑنا اس جماعت کے لیے بڑا دھچکا ہے، جبکہ شاہ محمود قریشی بولے کہ مصطفیٰ کمال کے انکشافات سنجیدہ نوعیت کے ہیں، جبکہ نبیل گبول کا کہنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ مصطفیٰ کمال کے ساتھ آئیں گے۔ ڈاکٹر صغیر نے متحدہ چھوڑی اور مصطفیٰ کمال سے جا ملے۔ سابق ناظم کراچی اور انیس قائم خانی کی جماعت میں اس دھماکے دار انٹری پر MQM مخالف جماعتوں کا فوری ری ایکشن بھی آ گیا۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی بولے مصطفیٰ کمال کے انکشافات سنجیدہ اور قومی نوعیت کے ہیں۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اگر انڈر تھریٹ لایا جا رہا ہے، اگر فورن فنڈنگ سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سو موٹو کیس بنتا ہے۔ ANP کے رہنما شاہی سید نے ڈاکٹر صغیر کے متحدہ چھوڑے جانے کو MQM کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا۔ موجودہ جو ہے اب اس میں ایف اگر مگر نہیں لگانا چاہیے، جوڈیشل انکوائری کر کے اور ان کو گرفتار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ خوشائن بات ہے کہ وہ لوگ خود اپنی گواہیاں دے رہے ہیں۔ سیاسی رہنما نبیل گبول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آنے والے دنوں میں ایک اور ڈاکٹر بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوگا۔ ڈاکٹر عشرت العباد کے بعد میں نے پارٹی چھوڑی اور لوگ بھی مصطفیٰ کمال کے ساتھ آئیں گے۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر 4 سدہ کو لہو لہو کر دیا۔ تحصیل شب قدر کی سیشن کورٹ میں خودکش دھماکے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ زخموں سے چور 25 زخمی مختلف ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ خودکش حملہ آور کے اعضاء DNA ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے۔ اس افسوسناک واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں جہانگیر شہزاد۔ بچے کچھ دہشت گردوں کا ایک اور وار، چرسدہ کی تحصیل شب قدر میں معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا ڈالا۔ شب قدر کی سیشن کورٹ میں ججز اور وکلا اپنے اپنے کام میں مصروف تھے اور سائلین کا رش لگا تھا کہ 11:15 پر کچہری کی دیواریں دھماکے سے ہل گئیں۔ ہر طرف چیخو پکار اور افراتفری پھیل گئی۔ خودکش دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت کئی قیمتی زندگیاں خاموش ہو گئیں۔ پولیس کے جوان اپنی جانیں نہ دیتے تو جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا۔ انہی شاہدین بتاتے ہیں خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانے لگا تو اہلکار نے اسے روک لیا، جس پر اس نے فائرنگ کر دی۔ یہ دیکھ کر ایک اور اہلکار نے اسے دبوچ لیا، جس کے بعد حملہ آور نے خود کو اڑا لیا۔ فائرنگ ہوئی تو فائرنگ کے فوری بعد میں میرا ساتھی وکیل اور یہ جو بندے تھے عدالت میں جو کام کرتے، وہ ہم عدالت کے جج صاحب کے ریٹائرنگ روم میں فوری طور پر چلے گئے۔ 5-6 منٹ میں وہ بھی پہنچ گئے، وہ کمیٹی اہلکار جو تھے میونسپل شب قدر کے۔ ہم وہاں پیچھے بیٹھے تھے کہ فائرنگ کی آواز سنی اور فائرنگ کے ساتھ فوراً دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد کچہری میں آگ لگ گئی جو بعد میں بجھا دی گئی۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ خودکش حملہ آور کی عمر 16 سال بتائی جاتی ہے۔ پولیس والے زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس کو جو ہے نیوٹرل کرنے کی کوشش کیا۔ اس دوران اس نے بلاسٹ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خودکش حملہ آور کے اعضاء اور دیگر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں 5 خواتین، 2 بچیاں، 2 پولیس اہلکار اور وکیل کا ایک منشی شامل ہے۔ زخمیوں کو DHQ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور پھر لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور منتقل کر دیا گیا۔ شب قدر کچہری میں خودکش دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے قبائلی علاقوں کی طرف سے آنے والے راستوں پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ جہانگیر شہزاد، ایکسپریس نیوز، شب قدر۔ 4 سدہ کی تحصیل شب قدر میں پولیس اہلکار نسیم جان نے حملہ آور کو روک کر اپنی جان دے دی۔ شہید نے اپنا کال سچ کر دکھایا۔ مزید بتائیں گے جہانگیر شہزاد۔ اپنی جان دے دی، دوسری کئی جانیں بچا لی۔ یہ بولا ہے کہ پہلا ہمارا جان جائے گا پھر آپ لوگوں کے پاس جائے گا۔ شب قدر میں خودکش حملہ آور کو دبوچنے والا پولیس اہلکار میاں نسیم جان سینکڑوں زندگیاں بچا گیا۔
तहसील शबकदर की कचहरी में मियां नसीम जान का तबादला कुछ अरसे पहले ही हुआ था। ड्यूटी संभालते ही उसने मुतलका हुकाम को यकीन दिलाया था कि उसके जिंदा होते खुदकश दहशतगर्द कचहरी में दाखिल नहीं हो सकेगा। शहीद ने कई जानें बचाकर अपना वादा पूरा कर दिखाया। ऐसा शहद से महरूम हो गया कि जो खुश अखलाक और अच्छा किरदार वाले आदमी था। उसका वालिद साहब भी इस पुलिस में, उसका दूसरा एक भाई भी है वो भी पुलिस में। इसके पुलिस के लिए बहुत कुर्बानी और वो हर दम पुरज़म रहता था। ये हमारा भाई भी था और हमारा अफसर भी था। इधर कचरों का नहीं इंचार्ज था, बहुत अच्छी ड्यूटी की उसने और उसकी जाम पर हम ये बाहर है। मियां नसीम जान कचहरी के मेन गेट पर मौजूद था। 11 बजे के करीब साथी कांस्टेबल ने मशकूक नौजवान को रोकने का कहा, जिसने कांस्टेबल पर गोली चलाई और अदालत की तरफ दौड़ लगा दी। फायरिंग सुनकर हेड कांस्टेबल मियां नसीम जान ने दहशतगर्द पर गोली चलाई और आगे बढ़कर दबोच लिया, जिस पर दहशतगर्द ने अपने हदफ तक पहुंचने से पहले खुद को धमाके से उड़ा लिया। शहीद नसीम जान शबकदर कचहरी का सिक्योरिटी इंचार्ज था। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज, शबकदर, चरसदा। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची बेअमनी अमल दरामद केस में पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिपोर्ट को अदालत की आंखों में धूल झोंकने के मुतारिफ करार दिया। चीफ जस्टिस कहते हैं 3 से 4 हजार इश्तिहारी आजाद होंगे तो अमन अमान की सूरत हाल क्या होगी। केस की समाअत के बारे में मजीद बताएंगे शाकिर सुल्तान। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत पुलिस हुक्काम और इंतजामिया पर काफी भारी गुजरी। शहर में अमन और अमान की खराब सूरत हाल पर चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली चीफ सेक्रेटरी पर नाराज दिखाई दिए तो आईजी सिंध को झाड़ पिला दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में पुलिस कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई तो चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध पर सवालात की बौछार कर दी। पूछा, पिछले साल 159 अफराद की टारगेट किलिंग हुई, कौन सा मुजरिम पकड़ा गया, कितनों के खिलाफ चालान पेश हुए। 3 से 4 हजार इश्तिहारी आजाद हो तो अमन अमान की सूरत हाल क्या होगी। पेरोल पर रिहा किए गए मुल्जिमों का क्या बना। जवाब में आईजी सिंध ने कहा, पुलिस ने बहुत काम किया है। आईजी साहब के बाद चीफ सेक्रेटरी की बारी आ गई। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2 अफसरान के अलावा किसी पुलिस अफसर को 3 साल तक एक जगह काम नहीं करने दिया जाता। जो अफसर डिक्टेशन नहीं लेता इसका तबादला कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, डिक्टेशन ना लें। अदालत ने पेश की गई पुलिस रिपोर्ट को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार देते हुए फारिग कर दिया। बड़ी खबर थी आपको, सिंध रेंजर्स ने कराची पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दी है। मुल्जिमों के खिलाफ तफ्तीश पर कड़ी तनकीद की गई है। नाकिस तफ्तीश के बायस गुज़श्ता साल 1100 मुल्जिम रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट से अपने थाने कायम करने और मुकदमात की पैरवी के साथ इख्तियारात में 1 साल की तौसी भी मांग ली। जी हाँ, खबर दे रहे हैं आपको, कराची पुलिस की नाकिस तफ्तीश से गुज़श्ता साल 1100 मुल्जिम रिहा हुए। रेंजर्स रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। रेंजर्स ने कराची पुलिस की कारकर्दगी पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दी। रेंजर्स की रिपोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कराची बेअमनी अमल दरामद केस की समाअत के दौरान रेंजर ने अपनी रिपोर्ट में जहां मौजूदा अमन को नापायदार करार दिया, वहीं अदालत के सामने कुछ तजावीज भी रख दी। रेंजर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बायस पिछले साल 1100 मुल्जिम रिहा हो गए। सानेह सफूरा के मुल्जिमों को पुलिस ने 2011 में छोड़ा था। पुलिस में भर्तियां मेरिट पर नहीं की जाती। थानेदारों की तैनाती की मुद्दत मुकर्रर न होने से जराइम बढ़ते हैं। पिछले साल महकमा दाखिला में 4 सेक्रेटरीज तब्दील हुए। रेंजर्स के वकील ने कहा कि इख्तियारात कम होने के बाद से रेंजर्स कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही। इख्तियारात में तोसी के मामले पर ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। रेंजर्स के इख्तियारात में कम अज कम 1 साल की तोसी होनी चाहिए। रेंजर्स ने अदालत के जरिए अपने थाने बनाने और मुकदमात की पैरवी के इख्तियारात भी मांग लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेंजर्स की रिपोर्ट आईजी और चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ चार्जशीट लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को रेंजर्स की रिपोर्ट का शिकवार जवाब देने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको अहम खबर देते हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूल मालकान फिर धड़ों में बढ़ गए हैं। एक ग्रुप राजी हो गया, दूसरा जिद पर कायम है। कल तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, वालिदैन परेशानी का शिकार हो गए। जबकि आपको बताएं कि राना मशहूद बोले कानून बदलेगा, कोई इस गलत फहमी में न रहे। जी हां, यह अहम खबर। पंजाब में प्राइवेट स्कूल मालकान फिर धड़ों में तकसीम हो गए हैं। कल तालीमी इदारे खोले जाएं, एक ग्रुप राजी तो दूसरा बंद रखने की जिद पर कायम है। आपको ये खबर, वालिदैन इस खबर से परेशानी का शिकार हैं कि कल तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। प्राइवेट स्कूलों के मालकान ने एका कर लिया। पंजाब असेंबली में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती हुई फीसों का बिल पास हुआ तो प्राइवेट स्कूल मालकान भी मैदान में आ गए और 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर लिया। ये कानून एक बड़ा अजीब सा कानून है जिसके अंदर हमें एक क्रिमिनल की तरह डील किया जा रहा है। ये है तस्वीर का एक रुख। दूसरी तरफ ये फैसला सुनकर सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद ने प्राइवेट स्कूल मालकान का इजलास बुलाया और कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल का कोई ख्याल करें। अहम ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 5000 से कम फीस लेने वाले स्कूलों को हम नहीं छेड़ेंगे। ये पेरेंट्स ने आवाज उठाई थी और हुकूमत पंजाब जो है इसने बैठकर मुज़ाकरात भी बार बार किए हैं प्राइवेट स्कूल्स के साथ और 97% प्राइवेट स्कूल्स कल खुल रहे हैं। एक और दिलचस्प इंकशाफ करते हुए सूबाई वजीर बोले काशिफ मिर्जा का अपना स्कूल 5000 से कम की फहरिस्त में आता है, मगर वो नुमाइंदगी बड़े स्कूलों की करते हैं। जो बंद हो रहे हैं उनके बच्चे और उनके वालिदैन इन स्कूलों से सवाल करने में हक बजानिब है कि आपका इशू सिर्फ एक ही है कि फीस में इजाफा क्यों नहीं किया जा रहा। चंद बड़े प्राइवेट स्कूल मालकान को हुकूमती फैसला पसंद न आया और स्कूल ना खोलने का ऐलान कर दिया। हर दफा यही वादा किया जाता रहा है कि इन्हीं सिफारिशात के ऊपर इंशाअल्लाह हम जल्द कोई फैसला कर लेंगे और उसके बाद ये बिल पास करा दिया गया जो हमें बिल्कुल नामंजूर है। सूबाई वजीर तालीम और स्कूल मालकान के दरमियान क्या तय पाता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कोई इस पर तो तवज्जो दे कि बच्चों की तालीम का कितना नुकसान हो रहा है। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। फीसों में इजाफे के मामले पर प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया 2 धड़ों में बट गई। एक धड़ा काशिफ मिर्जा को अपना नुमाइंदा मानने से इनकारी है तो दूसरी तरफ काशिफ मिर्जा का दावा है कि वो पूरे पंजाब के स्कूल्स की नुमाइंदगी करते हैं। फीसों में इजाफे के मामले पर हड़ताल ने निजी स्कूलों की इंतजामिया को धड़ों में तकसीम कर दिया। वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद ने इजलास बुलाया तो काशिफ मिर्जा समेत नामी गिरामी स्कूलों के मालकान शरीक न हुए। इस इजलास में ईडीओ एजुकेशन लाहौर परवेज खान ने मौक़िफ़ अपनाया। नवी जमात के इम्तहानात सर पर हैं, ऐसे में स्कूलों का बंद होना तुलबा के लिए सख्त नुकसानदेह है। स्कूलों की फीसों में इजाफे के हवाले से वालिदैन भी काफी परेशान दिखाई देते हैं। गरीबों के बच्चे कहाँ जाए, कभी स्कूटी के नाम पे, कभी फीसों के नाम पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक दायरे कार में जो इख्तियारात दिए प्राइवेट को वो उसके अंदर ही रहें। एक्शन लें इस पे और ये स्कूल जो है इसको जारी रखें, इसको बंद ना करें। प्राइवेट स्कूलों को फीसें ना बढ़ाने दें और जो फीसें बढ़ा रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पे स्कूल बंद कर देने चाहिए। बच्चों का नुकसान ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट भी है प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट से भी कि बच्चों को ना घसीटें इसमें। बात की जाए लाहौर में निजी स्कूलों की तादाद की तो शहर में इस वक्त 5000 रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं, जिनमें से 150 ए कैटेगरी में शामिल हैं। तुलबा की तादाद देखी जाए तो ए कैटेगरी के स्कूलों में 50,000 तुलबा ज़ेरे तालीम हैं, जबकि बाकी 5.5 लाख बच्चे बी कैटेगरी के स्कूलों में पढ़ते हैं। फीसों में मर्जी के इजाफे पर बज़िद एलीट स्कूलों के मालिकान अपने फायदे के लिए जाने अनजाने में तुलबा के मुस्तकबिल से खेल